चलो बच्चों, अभ्यास 6 की ओर जाते हैं। वहाँ पे लिखा है गिनती क्रमिक रूप से बोलते जाइए और रेखा को काटे बिना उन्हें जोड़ते जाइए। तो यहाँ पे बच्चों वापस पहले हमने एक चित्र बनाया था ना, वैसा ही यहाँ पे भी एक अच्छा चित्र बनेगा। तो यहाँ पे कोई कलर करने के लिए हमको नहीं बुलाया गया है, लेकिन ऐसे जोड़ बनानी है कि वहाँ पे हमको मतलब जो अपने रेखा बनाते हैं उसको तोड़ने का नहीं है, पेंसिल उठाने का नहीं, वैसे ही उनको बनाने का है। એટલે કે બાળકો તમારે પેન્સિલને રોક્યા વગર આ ચિત્રને તમારે સરસ રીતે બનાવવાનું છે, હે ને। અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો, 1 2 वापस 3, तो मैंने पेंसिल नहीं उठाई, इस तरह से 3 के बाद 4, 4 के बाद यहाँ पे जाएंगे 5, 5 के बाद जाएंगे 6, 6 के बाद जाएंगे 7, 7 के बाद हम जाएंगे सीधा 8, 8 के बाद हम जाएंगे वापस 9, 9 से हम जाएंगे वापस यहाँ से लेके 10, 10 के बाद हम जाएंगे 11, 11 से जाएंगे हम 12 पे जाएंगे और 12 पे जाएंगे, 12 से हम सीधा 13 कहाँ है, 13 ढूंढ के हम 13 पे जाएंगे, 13 से लेके हम वापस 14 पे जाना है। चौदह से लेके हमको यहाँ पे 15 पे जाना है, 15 से लेके हमको यहाँ पे 16 पे जाना है, 16 से लेके हमको यहाँ पे 17 पे जाना है, 17 से लेके हमको यहाँ पे 18 पे जाना है, 18 से हमको ये 19 पे आना है और ये 19 पे हमको 20 पे आना है। तो इस तरह से चित्र को आपको बनाना है। तो ये इस तरह से आपको उसको रेखा बिना काटे ही बनाना है, ऐसे कोई चित्र नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको सिर्फ जो आप चित्र एक बार शुरू करेंगे उसके बाद में आपको रेखा को काटना नहीं है। मतलब કે તમે જે ચિત્ર એકવાર 1 થી 2 લઈને જોડવાનું શરૂ કરશો તો એને તમારે ઉઠાવવાનું નથી, અથવા તો અહીંયા જોડ્યા પછી અહીંયા આગળ બીજી જગ્યાએ જતા રહેશો કે અહીંયા આમ કપશો આમ કરશો, એવું નથી। આમ તમે 1 પછી 2 પછી આમ 3 3 પછી તમે આમ 4 પર જાઓ, 4 પછી સીધા તમારે આમ 5 પર જવાનું, 5 પરથી આમ સીધા 6, 6 પરથી તમારે 7 પર જવાનું છે અને 7 પછી તમારે પછી સીધા અહીંયા આગળ તમને 8 બતાવ્યા છે, 8 પછી તમારે 9 પર આવવાનું છે, 9 પછી તમારે ડાયરેક્ટ તમારે 10 પર જવાનું છે, 10 પછી તમારે ડાયરેક્ટ 11 પર આવવાનું છે, 11 પછી તમારે ડાયરેક્ટ 12 પર આવવાનું છે, 12 પછી તમારે ડાયરેક્ટ 13 પર જવાનું છે, 13 પછી તમારે 14 શોધવાના છે। તો 14 ને શોધીને તમારે આ રીતે 14 પર આવવાનું છે, 14 પછી તમારે 15 પર આવવાનું છે, 15 પછી તમારે 16 પર જવાનું છે, 16 પછી તમારે 17 પર આવવાનું છે, પછી 18 પર આવવાનું છે, પછી 17 પર આવવાનું છે, પછી તમારે 18 પર આવવાનું છે, પછી એને 19 પર આવવાનું છે અને પછી અહીંયા આગળ 20 પર આવવાનું છે। તો આ રીતે તમારે પેન્સિલ ઉઠાવ્યા વગર કરવાનું છે। તો બાળકો, તમને હમણાં સમજણ પડી ગઈ? ઓકે, સરસ। આ ફક્ત તમને એક શું મળે, તમને એક નોલેજ મળે, 1 થી 20ની ગણતરી કરવાનું તમને એક નોલેજ મળે એટલા માટે આ એક તૈયાર કરવામાં આવેલું છે। તમે ફક્ત 1 થી 20 સુધી અંકો શીખી શકો, હે ને, એના માટે તમને આ એક મજા આવે એ રીતે તમને રેખાને એટલે કે તમારે લીટીને કાપ્યા વગર આ તમારે ચિત્ર તમે આને સરસ રીતે બનાવી શકો છો। તો આ રીતે તમારે 1 થી 20 સુધીની ગણતરી કરવાની છે અને તમે અંકો આપેલા છે એટલા માટે સરસ રીતે તમે અંકોને ઓળખી પણ શકશો અને લખતા પણ તમને આવડી જશે અને તમે સાથે સાથે બોલતા જશો તો તમને બોલતા પણ હિન્દીમાં આવડી જશે। તો આ રીતે બાળકો આપણે જોવાનું છે। ચલો બાળકો, હવે આપણે આવીશું સ્વાધ્યાય પર।
તો બાળકો આપણને 1થી અલગ અલગ 6 અભ્યાસ આપ્યા હતા. 1થી 6 અભ્યાસ આપ્યા હતા. એ અભ્યાસ પરથી આપણે ફક્ત 1થી 20ની ગણતરી શબ્દોમાં અને અંકોમાં કેવી રીતે કરવી એ આપણે શીખી ગયા. બહુ સરસ રીતે આપણે શીખી ગયા. હવે શીખી ગયા છે તો એનું સ્વાધ્યાય પણ આપણને શીખવાનું છે. તો સ્વાધ્યાયની અંદર આપણે જોઈશું બાળકો. અહીંયા આગળ શું બતાવવામાં આવ્યું છે. પ્રશ્ન 1 છે. પ્રશ્ન 1 पे यहाँ पे क्या लिखा गया है. गिनती के सही शब्द अंकों के सामने लिखिए. मतलब कि गिनती के सही शब्द अंकों के सामने लिखे. અહીંયા આગળ गिनती है 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे 17, फिर उसके बाद में यहाँ पे 18, यहाँ पे 19. इस तरह से हमको दिए गए हैं. तो हमको क्या करने की ज़रूरत है. यहाँ पे 2 लिखा है तो उसके सामने तो 17 लिखा है. तो यहाँ पे अलग 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 दिखा गया. यहाँ पे 17 लिखा है, यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 2, यहाँ पे 18, यहाँ पे 19, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3. इस तरह से लिखे गए हैं. तो यहाँ से हमको क्या करना है. सही शब्द ढूंढ के यहाँ पे हमको लिखना है. जैसे यहाँ पे 2 लिखा है तो शब्द में 2 कहाँ है. ये रहा. तो ये 2 उठा के हमको यहाँ पे क्या लिखना है. शब्द में 2 लिखना है. ये 3 है तो सामने से हमको ढूंढना है 3 किधर है. तो सबसे नीचे यहाँ पे 3 बताया गया है. सबसे ऊपर ये 3 है तो ये 3 के सामने लिख देने का. फिर यहाँ पे लिखा है 5. 5 कहाँ है. तो 5 यहाँ पे है तो 5 को उठाकर यहाँ पे 5 लिखना है. यहाँ पे है 6 को उठा के यहाँ पे 6 लिखा है तो यहाँ पे हमको 6 लिखना है. यहाँ पे 9 है तो 9 कहाँ है. ये 9 रहा. यहाँ पे हमको ये 9 लिखना है. यहाँ पे 17 है तो 17 कहाँ लिखा है. सबसे ऊपर लिखा है. तो यहाँ से उठा के हमको यहाँ 17 के सामने ही शब्द 17 लिखना है. यहाँ पे 18 है तो आपको 18 यहाँ पे लिखना है. यहाँ पे 19 है तो ये 19 यहाँ पे उठा के यहाँ पे हमको शब्द में ये 19 यहाँ पे लिखना है. तो बच्चों इस तरह से हमको स्वाध्याय 1 करने का है. 1 2 2 3 3 5 5 6 6 9 9 17 17 18 18 19 19. तो इस तरह से यहाँ से ढूंढ के हमको इस तरह से स्वाध्याय 1 करना है. चलो हम स्वाध्याय 2 की ओर जाते हैं आगे. चलो बच्चों यहाँ पे है अभ्यास 2. अभ्यास 2 में यहाँ पे क्या लिखा है. रिक्त स्थानों में क्रम से संख्या अंक भरिए. એટલે કે આપણને અહીં આગળ એક સરસ બોક્સ બનાવીને આપ્યું છે. 1થી 20 સુધીનું બોક્સ છે. એમાં એવું છે કે અમુક ખાનાની અંદર અંક લખેલા છે. જેમ કે તમે જોઈ શકો છો અહીંયા 1 જોઈ શકો છો. પછી ખાલી એક બોક્સ આપ્યું છે. ફરી પછી અહીંયા આગળ તમે જોઈ શકો છો અહીંયા 3 लिखा है. फिर यहाँ पे खाली बॉक्स है. यहाँ पे 5 लिखा है. ये खाली जगह है. यहाँ पे 7 है. यहाँ खाली जगह लिखा है. यहाँ पे 9 10 लिखा है. यहाँ खाली जगह है. यहाँ पे 12 लिखा है. ये छोड़ दिया है. यहाँ पे 14 लिखा है. यहाँ पे छोड़ दिया है. फिर यहाँ छोड़ा है. यहाँ छोड़ दिया. यहाँ पे 18 लिखा है. फिर ये सब छोड़ दिया है. तो ये सब जहाँ जहाँ जगह छोड़ के रखा है बॉक्स में वहाँ पे हमको जो संख्या के बाद जो आता है वो जो अंक के बाद जो आता है वो हमको यहाँ पे भरने का है. जैसे कि यहाँ पे 1 है तो 1 के बाद क्या आएगा. 2 आएगा. तो यहाँ पे हमको क्या लिखना है. 2 हिंदी में लिखना है. यहाँ पे 3 लिखा हुआ है. वापस हमें 3 के बाद क्या आएगा. 4 आएगा. तो बच्चों यहाँ पे हमको 4 हिंदी में लिखना है. यहाँ पे सारे अंक हिंदी में दिए गए. हमको हिंदी में ही लिखने का है. फिर यहाँ पे 5 लिखा हुआ है. फिर उसके बाद में खाली जगह छोड़े. 5 के बाद क्या आता है. यहाँ पे 6. तो आप सबको कहाँ पे. यहाँ पे बच्चों 6 लिखना है. 6 के बाद यहाँ पे 7 लिखा हुआ है. 7 के बाद क्या आएगा. 8 आएगा. तो यहाँ पे आपको 8 लिखना है. यहाँ पे 9 तो लिखा हुआ है. यहाँ पे 10 भी लिखा हुआ है. अभी आए 10 के बाद क्या आएगा. 11. तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है. 11 लिखना है. यहाँ पे 12 लिखा हुआ है
तो यहाँ पे 12 के बाद क्या आएगा 13, तो आपको यहाँ पे 13 लिखना है। यहाँ 14 तो लिखा गया है, यहाँ 14 के बाद क्या आएगा, 14 के बाद 15 आएगा, तो यहाँ पे आपको 15 लिखना है। 15 के बाद यहाँ पे जगह खाली छोड़ा है, तो उसके बाद क्या आएगा, 15 के बाद 16, यहाँ पे जगह खाली है। 16 के बाद क्या लिखना है, 17, यहाँ पे 18 लिखा गया है। 18 के बाद क्या आएगा, 19 आएगा, और 19 के बाद यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पे क्या आएगा, 20 आएगा। तो बच्चों यहाँ पे इस तरह से जहाँ पे जो खाली जगह दिया है वो हमको भरने का है। जो बॉक्स हमारे लिए छोड़ के रखा है वहाँ पे पूरी तरह से अच्छे से हमको अंक भरने के है। तो जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे बताया वैसा ही आपको भरने का है। चलो वापस फिर से मैं 1 से 20 तक की गिनती कर लेते। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो आए समझ में बच्चों, आप सबको समझ में आ गए ना। तो इस तरह से हमको अंक भरने के है। चलो बच्चों आगे हम देखते हैं, अभ्यास 3 में जाते हैं। अभ्यास 3 में क्या लिखा है, अभ्यास 3 में लिखा है रिक्त स्थानों में शब्दों में गिनती क्रम से लिखे। पहले में हमने क्या लिखा, अंक में लिखा, और यहाँ पे हमको क्या लिखा बोला गया है, यहाँ पे हमको शब्दों में लिखना है। शब्दों में जैसे यहाँ पे 1 लिखा है हिंदी में, यहाँ पे हिंदी में शब्द में 2 लिखना है, यहाँ पे 3 लिखना है, शब्दों में 4 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 5 आएगा। 5 के बाद यहाँ पे 6 आएगा, 6 के बाद यहाँ पे 7 आएगा, 7 के बाद 8 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा, और 10 के बाद यहाँ पे 11 लिखा हुआ है तो 11 के बाद क्या आएगा 12, 12 के बाद क्या आएगा 13, 13 के बाद क्या आएगा 14, 14 के बाद 15 तो लिखा गया है, 15 लिखा गया है तो यहाँ पे आएगा 16, यहाँ पे 17 तो लिखा गया है, 17 के बाद क्या आता है 18, 18 के बाद यहाँ पे आएगा 19, 19 के बाद आएगा यहाँ पे 20। तो बच्चों आगे हमने अंक में लिखा, यहाँ पे हमको शब्द में वैसा ही लिखना है, लेकिन यहाँ पे हमको शब्द में लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो बच्चों पूरे 1 से 20 तक की गिनती आज हमने सीखा, शब्द में सीखा और अंक में भी सीख लिया है। तो अलग अलग अभ्यास के द्वारा हमको बताया गया था। तो बच्चों हमने 1 से 6 तक का अभ्यास किया, जहाँ पे हमको गाना देखने को गाना बनाया गया था 1 से 20 तक की। फिर उनके बाद अंक जोड़ने के लिए बताए गए, और इसके बाद अच्छे अच्छे हमको तरीके दिखाए गए थे कि किस तरह से हम गिनती करके ये सीख पाते हैं। तो बहुत अच्छी तरह से हम गिनती कर पाए बच्चों, और बहुत अच्छे से पाठ हमने समझ लिया है। तो बच्चों आपको अभी बारी आती है होमवर्क की। तो होमवर्क में बच्चों आप अभ्यास स्वाध्याय में अभ्यास प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 3 घर से 2-2 बार लिख के लाना है। समझ में आया बच्चों? वापस फिर से बोलती हूँ, स्वाध्याय 1 में प्रश्न 1, प्रश्न 2 और प्रश्न 3 आपको 2-2 बार लिखना है, और 1 से 20 की गिनती अलग से सुनो बच्चों। वापस 1 से 20 की गिनती भी आपको 5 बार लिखने की है। कितनी बार लिखने की है? अंक में लिखना है और उसके सामने शब्द में लिखना है। समझ लो, पहले अंक में लिखना, उसके बाद में आप शब्द में लिखना। इस तरह से आपको 5 बार लिख के